کے پاس، پورے چرچ کے پاس بائبل ہونی چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، میں خود پڑھوں گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ آمین۔ پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تشریف رکھے، سبھی بیٹھے اور بیٹھتے بیٹھتے کہیں خداوند یسوع مسیح کی، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کہیں خداوند یسوع مسیح کی۔ تھینک یو ایلڈر صاحب، بیٹھے تشریف رکھے۔ عزیز مسیحیو، گمراہی، جہالت، تاریکی، گناہ، آلودگی، پلیدگی، گندگی، گھٹن اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا، اپنے آپ کو شیطان کے قبضہ میں سمجھنا اور اپنے آپ پر موت کا غلبہ ہونا، یہ چیزیں ہم پر کامن تھی۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ پھر سے سن لیں، مجھے پتا ہے ابھی آپ ادھر ادھر ہی دھیان ہے آپ کے، اب غور سے سن لیں۔ گمراہی، جہالت، تاریکی، گندگی، گناہ، آلودگی، پلیدگی، گھٹن اور ان سب کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا، شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا سمجھنا، موت کا اپنے اوپر غلبہ سمجھنا، یہ ہماری عادات تھی۔ یہ ہماری کیا تھی؟ عادات تھی۔ اور آج بھی جن لوگوں کی زندگی میں یسوع نہیں ہے، ابھی بھی وہ وہیں پر ہی ہے، ابھی تک ان چیزوں میں ہی وہ شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے ہی جکڑے پن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ چیزیں ساری دنیا میں تھی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں، جو جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، گمراہی، جہالت، تاریکی، گناہ، گندگی، آلودگی، پلیدگی، گھٹن، غیر محفوظ ہونا، موت کا غلبہ، یہ ساری چیزیں ساری دنیا پر عروج پر تھی۔ ساری دنیا اسی کے شکنجے میں پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی ان کے شکنجے سے باہر نہیں تھا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا، وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا، لیکن اس نے ہم کو شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی پیدائش گناہ سے نجات ہے، یسوع مسیح کی پیدائش موت کی شکست ہے، یسوع مسیح کا آنا شیطان کی مکمل ہار تھی، یسوع مسیح کی پیدائش موت اور دنیا سے جہالت اور گمراہی کے ختم ہونے کی نشاندہی تھی۔ یسوع مسیح کا پیدا ہونا آلودگی اور پلیدگی سے آزاد ہونا تھا، اور اس لیے یسوع کی شان یہ ہے کہ آج تک یسوع جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بادشاہ یسوع کی طرح کا ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات، یسوع کے عجیب بادشاہ ہونے کی سب سے پہلی بات لکھا ہے، یسوع جب دنیا میں آیا تو لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ نہیں جس کے کندھے پر سلطنت ہو، وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ غیر قوموں کے بادشاہ، دور و نزدیک کے بادشاہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاس چرنی میں آتے ہیں۔ کہاں پر آتے ہیں؟ چرنی کے پاس آتے ہیں، اس طبیلے میں آتے
नासरी चरनी में आया ही इसलिए कि खास से खास भी यस्सु का दीदार कर सके और आम लोग भी यस्सु का दीदार कर सके। अगर यस्सु किसी महल में पैदा हो जाते, यस्सु मसीह नासरी किसी महल में पैदा हो जाते ते महल में चरवाहियां नूं ते कदी किसी ने वड़न नहीं देना सी, उनको तो शहर में नहीं आने देते थे लोग बेचारों को, तो चरवाहे कहां से आ सकते थे। लेकिन यस्सु मसीह नासरी ऐसी जगह पर पैदा हुए जहां पर खास से खास आराम से आ सके और आम से आम बंदा भी आकर यस्सु का दीदार कर सके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यस्सु मसीह की। यस्सु मसीह नासरी बादशाह के तौर पर दुनिया में आया। यस्सु मसीह नासरी चरनी में ऐसे आया कि हर कोई खासो आम उसका दीदार हासिल कर सके। और यस्सु मसीह जब चरनी में आया तो कपड़े में लपेटा गया। यस्सु मसीह को किस में लपेटा गया? कपड़े में लपेटा गया, मतलब वो हकीकी और कामिल बर्रा बनकर आया। हकीकी और कामिल बर्रा बनकर आया। वो बर्रे जो वहां पर बंधे हुए थे, वो जानवर, वो मेंढे, वो सांड, वो बर्रे जो वहां पर बंधे हुए थे, वो यस्सु का दीदार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये अपने पूरे ईमान के साथ कहता हूं कि वहां पर जितनी भेड़ बकरियां थी, चरवाहों के साथ जितनी भेड़ बकरियां आई और पहले से मौजूद जो वहां पर जानवर थे, उनकी आंखों में जो खुशी यस्सु को देखकर आई होगी, वो अपने मालिकों को भी देखकर नहीं आती होगी। हालेलुया। जब उन्होंने यस्सु का दीदार किया होगा तो उन्होंने भी ये जान लिया होगा कि आज के बाद हमें कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद छुरी हमारे गले पर नहीं चलेगी। आज के बाद किसी के गुनाह की कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो यस्सु मसीह नासरी कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ है, हकीकी बर्रे के तौर पर आया है। अब सारी इंसान के गुनाह की कीमत ये हकीकी बर्रा देगा और अब छुरी इसके गले पर चलेगी और ये हमें भी नजात देने के लिए आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा यस्सु के जैसा कोई है ही नहीं, यस्सु के जैसा कोई है ही नहीं। अलूहियत की सारी मामूरी को लेकर आया वो। कौन सी मामूरी को? अलूहियत की सारी मामूरी। कलाम मुजस्सम हुआ और किससे मामूर होकर? किससे मामूर होकर? फजल और फजल और सच्चाई से, मतलब वो सारा फजल लेकर, वो सारी सच्चाई, सारी मोहब्बत, सारी हिकमत, सारा प्यार, सारी कुदरत, सारी हशमत, सारा जलाल, सारी बरकत, सारी कदूसियत लेकर मुजस्सम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो सारी कदूसियत को लेकर मुजस्सम हुआ है। इसलिए यस्सु जैसा कोई है ही नहीं। और जब वो यस्सु पैदा हुआ, उसकी पैदाइश को 8 दिन हुए। याद रखिएगा, 8 दिन के बाद यस्सु को हैकल में नहीं ले जाया गया। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि यस्सु को 8 दिन के बाद हैकल में ले जाया गया है। वहां पर लिखा हुआ है जब उनके तहारत और पकीजगी के दिन पूरे हुए वो फिर हैकल में गए। लेकिन 8वें दिन क्या हुआ? यस्सु का नाम लिखा गया। क्या किया गया? लिखा गया, नाम रखा गया। जो नाम फरिश्ता ने उसके पेट में पड़ने से पहले मुकद्दसा मरियम को भी बताया था, यूसुफ को भी बताया था, वो नाम रखा गया। हालेलुया, वो नाम रखा गया। और जैसे ही ये नाम रखा गया, आज तक आप बाइबल की सारी तारीख पढ़कर देख लें, आम सारी हिस्ट्री पढ़कर देख लें, जो कोई तारीख से टकराया, तारीख ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस किसी ने
तारीख के साथ टकराने की कोशिश की, तारीख ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन आज के दिन जब इस दुनिया को, इस दुनिया की तारीख को यस्सु नाम मिला, तो जब यस्सु इस तारीख से टकराया, तो मेरे अजीज मसीही बहन भाइयों, आपके यस्सु जैसा बादशाह दुनिया में कोई है ही नहीं। यस्सु से पहले जो तारीख से टकराता, तारीख उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। लेकिन जब यस्सु तारीख से टकराया तो तारीख के टुकड़े हो गए, और ज़माना कबल अज़ मसीह और ज़माना बाद अज़ मसीह बन गया। और आज तक पूरी दुनिया में ऐसे ही है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। अभी दाऊद साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले, आज हमें कोई क्रिसमस मुबारक कहता है या नहीं कहता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपको कोई ईस्टर मुबारक कहता है या नहीं कहता, आज अगर यीशु मसीह को कोई ज़ाहिरन तौर पर मानता है या नहीं मानता, लेकिन जब सुबह सवेरे उठकर वो तारीख पूछता है या उसके सामने करंट डे की तारीख आती है, तो वो तारीख चीख चीख कर कह रही होती है। अगर सुनने वाले कान हो तो वो सुन ले कि वो तारीख चीख चीख कर कह रही होती है कि मैं उस मुनज्जी की, मैं उस नजात दहिंदा की गवाही दे रही हूं जो आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आ गया। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जब सुबह सवेरे दफ्तरों में तारीख लिखी जाती है, 1 तारीख पहला महीना 2026, वो चीख चीख कर कह रही होती है कि मैं यस्सु की पैदाइश बता रही हूं, मैं ये बता रही हूं कि यस्सु नजात दहिंदा है, मैं ये बता रही हूं कि सारी दुनिया का कफारा देने वाला यस्सु है, मैं ये बता रही हूं कि उस बादशाह ने मेरे टुकड़े कर दिए, उस बादशाह ने मेरे टुकड़े कर दिए। हालेलुया। नाकदीन गैर मसीही जितने भी इस दुनिया में हमारे त्योहारों को नहीं मानते, वो तारीख को तो मानते हैं, और ये तारीख चीख चीख कर कह रही है कि आज यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2025 साल गुजर चुके और 26वां साल शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए गौर से सुन लो, तुम ज़ाहिरन तौर पर तो यीशु नाम को अपनी जुबानों से दूर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने जुबान चुप कर ली या अपने जोर पर तुमने दूसरों की जुबानें चुप करवा दी, तो दुनिया का जर्रा जर्रा पुकार उठेगा कि हमारा तख्लीककार, हमें खूबसूरती देने वाला, हमारे अंदर रंग भरने वाला, हमें ये तरोताजगी देने वाला, दुनिया का जर्रा जर्रा ये गवाही देगा कि हमें पैदा करने वाला, हमें बनाने वाला दुनिया का एक ही तख्लीककार है, और वो यीशु है। हालेलुया। वो कौन है? कोई और नहीं, वो यीशु है। हालेलुया। इसलिए सुनो सुनो, हम मजबूत चट्टान पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी ने चट्टान के साथ टकराने की कोशिश की तो जख्मी वही होएगा। हालेलुया। जो मजबूत चट्टान पर खड़े होते हैं उनको कोई भी हिला नहीं सकता, और हमारी चट्टान कोई और नहीं है। हमारी चट्टान कौन है? ऊंची आवाज से कहें, कौन है?
यस्सु स्यारा ज़मीन पर जब इतनी खूबियों को, इतनी खासियतों को लेकर पैदा हो गया, तो यस्सु मसीह को कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तो अपना मुनज्जी कबूल करता है। हम जो ईमान लाए हैं यस्सु मसीह पर, हम भी ये कबूल करते हैं। और जब ये कबूल हम कर लेते हैं कि यस्सु हमारा मुनज्जी है, तब क्या होता है? इंसान की शिरस्त बदल जाती है, इंसान की जबिल्लत बदल जाती है, इंसान की शख्सियत बदल जाती है, इंसान की सोचें और ख्यालात बदल जाते हैं, इंसान अंदर से तब्दील हो जाता है, इंसान की नज़र बदल जाती है। यानी कि वो ईमान की आंखों से खुदा की बादशाही का दीदार कर सकता है। जब यस्सु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल कर लिया जाता है तो इंसान की नजर बदल जाती है। जब यस्सु को अपना मुनज्जी कबूल कर लिया जाता है तो इंसान का मियार बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? इंसान जस्मानी से रूहानी, फानी जमीनी से आसमानी बन जाता है। जब यस्सु को मुनज्जी कबूल कर लिया जाता है तो इंसान की शनाख्त बदल जाती है और इंसान फिर आम इंसान नहीं बल्कि मसीही बन जाता है। जब यस्सु को कबूल कर लिया जाता है तो आपके अंदर एक कुव्वत काम करती है, एक मददगार आपके अंदर बसेरा करता है जिसका नाम हॉली स्पिरिट है, पाक रूह है। जब आप यस्सु को अपना मुनज्जी कबूल कर लेते हैं तब आप खुदा का मक़दिस बन जाते हैं। हालेलुया। क्या बन जाते हैं आप? खुदा का मक़दिस बन जाते हैं और खुदा आपके अंदर रहना शुरू कर देता है। पाक रूह आपके अंदर बसेरा करना शुरू कर देता है और जब ये सारी चीजें होती हैं आपकी नजर बदल जाती, आपका म्यार बदल जाता है, आपकी शनाख्त बदल जाती है, आप खुदा का मक़दिस बन जाते हैं। तब आपकी जिंदगी में वो दर्जा आता है, आप आम इंसान से बदलकर आदम के गुनाहों से बरी होकर नई मखलूक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आप? नई मखलूक बन जाते हैं। हमारी मरकजी आयत, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है, वो न्यू है। वो क्या है? वो नया है। मतलब आदम की जो गुनाह की वजह से सूरत बिगड़ चुकी थी, अब वो दोबारा से यस्सु पर ईमान रखने की बदौलत सूरत दुरुस्त हो गई है। हालेलुया। आदम के गुनाह में पड़ने की वजह से शैतान का जो गलबा इंसान पर आ गया था, अब वो गलबा खत्म हो चुका है। मौत ने जो इंसान के ऊपर दावा बोला हुआ था, गालिब आई हुई थी, यस्सु मसीह के आने से मौत को भी मौत आ गई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आई भला मौत? आप सब जानते हैं। हालेलुया। किस किस को पता है कि जब यस्सु ने सलीब पर अपनी जान दी तो मौत को भी मौत आ गई। हालेलुया। कोई ऐसा बादशाह है? हालेलुया। इसलिए हमारा नाराए तस्लीस क्या आगे बढ़ा? नाराए तस्लीस, पाक सलीब, फाते सलीब। हालेलुया। फाते सलीब कह सकते हैं, नाराए तस्लीस। हालेलुया। फाते सलीब, नाराए तस्लीस, फाते सलीब। हालेलुया। ये है हमारा नारा, ईमानदारों का नारा। यस्सु ने मौत पर फतह पाई। आदम की वो सारी पर्सनैलिटी, आदम की वो सारी खसूसियात जो तुखमी तौर पर इंसान को मिली थी, वो सारी की सारी यस्सु मसीह में आंखें खोलने की बदौलत
ختم ہو جاتی ہے اور ہم کیا بن جاتے ہیں؟ نئی مخلوق. کیا بن جاتے ہیں؟ نیو ون. مطلب اب آپ کی جبلت پرانی نہیں رہی، اب آپ کی شریعت بدل چکی ہے، اب آپ کی شخصیت بدل چکی ہے اور آپ بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں. جیسے خدا نے حزقییل کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور حزقییل 36واں باب اس کی 26ویں آیت اگر آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے گا. خدا نے حزقییل کو کہا، حزقییل میں اپنا پانی، روح کا پانی انڈھیلوں گا اور تمہاری گندگی کو دھو ڈالوں گا. تمہاری گندگی کو کیا کروں گا؟ دھو ڈالوں گا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم گندگی میں، پلیدگی میں، آلودگی میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن خدا نے حزقییل کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں روح کا پانی ڈال کر تمہاری گندگی کو کیا کروں گا؟ دھو ڈالوں گا. اور حزقییل 36 اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا. ہاللیلویا. مطلب پرانی انسانیت کو خدا ختم کرنے کے لیے ہمیں پرانی مخلوق سے نئی مخلوق میں ٹرانسفر کرنے کے لیے خدا ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ نیا دل. کیا دینا چاہتا ہے؟ نیا دل. اور صرف نیا دل ہی نہیں، ہمیں خدا نئی روح بھی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کے اندر سے بدیوں والا، گناہوں والا، بری خواہشات والا، داغوں اور جھریوں والا، طرح طرح کی گندی گلیز محبتوں سے بھرا ہوا دل خدا کے اندر، آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے. خدا آپ کے اندر سے نشے بازی والے دل کو نکالنا چاہتا ہے. خدا آپ کے اندر سے بری خواہشات والے دل کو نکالنا چاہتا ہے. خدا آپ کے اندر سے سنگین دل کو نکالنا چاہتا ہے. لکھا ہے، میں تم کو نیا دل. کون سا دل؟ میں تم کو نیا دل، نئی مخلوق بننا چاہتے ہیں. آج کے دن کتنے چاہتے ہیں آج میں نیا بن جاؤں، نئے سال کے موقع پر میں نیا بن جاؤں، نئی انسانیت مل جائے؟ کتنے چاہتے ہیں مسیحیوں؟ اور مسیحیوں کتنے چاہتے ہیں؟ خوشی نال تے تانوں دوویں ہاتھی کھڑے کرنے چاہیے سی کہ یسو مینوں نواں بنا دے. اور باہروں بھی ہاتھ چک لو کہ سکٹا نہیں چھڑ سکتے. ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. یسوع جی مجھے نیا بنا دے. کہہ سکتے ہیں آپ؟ یسوع جی مجھے نیا بنا دے. ہاللیلویا. اور یسوع تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا. کون سا دل؟ نیو ون. I have a new heart for you. یسوع کے پاس آپ سب کے لیے نیا دل ہے، جس دل سے کنجوسیاں نکل جائیں گی، جس دل سے بدیاں نکل جائیں گی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس دل میں صرف اور صرف محبت، پیار ہوگا. اس دل میں جو یسوع آپ کو دے گا، نفرت، کدورت، گلے شکوے نہیں ہوں گے. اس دل میں صرف یسوع کی محبت پنہاں ہوگی، اور اس دل میں یسوع کے دیدار کی طلب ہوگی. جو دل خداوند آج آپ کو دینا چاہتا ہے، اس دل میں اتوار کو جلدی چرچ آنے کی جرت ہوگی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو دل یسوع آج آپ کو دینا چاہتا ہے، اس دل کے اندر آپ کے لیے ایک نیا پرستار بننے کی طلب ہوگی. ہاللیلویا. آپ کے لیے نیا دعا گو بننے کی طلب ہوگی. خداوند کہتا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو، سنگ دل کو
निकाल डालूंगा। यस, और गोश्त 3 दिल तुमको इनायत करूंगा। मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। जिसके अंदर खुदा का रूह है वो नया मखलूक है। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। और खुदा का ये वादा तब ही पूरा होता है जब हम मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह को नजात देंदा, अपना मुनज्जी, अपनी कीमत चुकाने वाला, अपना कफारा देने वाला मान लेते हैं। तब खुदा का ये वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है और यीशु मसीह हमारी आंखें खोलकर हमारी तबीयत को बदल देता है। यीशु मसीह हमारी आदत को बदल देता है। यीशु मसीह हमारे रवैये को बदल देता है। हम मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब चेंज हो गए, बदल गए, तो नई पर्सनैलिटी तैयार है। हालेलुया। नया चेहरा रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ अपने चेहरे पर वो पुराना मखौटा ही नहीं रखना कि मैं गुस्से वाला भी रहना है, मैं नफरत करने वाला भी रहना है, मैं हसद करने वाला भी रहना है, मैं दिल विच बुग़्ज़ रखने वाला भी रहना है। छोड़ दीजिए। आज यीशु आपको नए साल के मौका पर बदलना चाहता है। वो आपको आज चेंज करना चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 4 बाब उसकी 24वीं आयत जल्दी से निकालिएगा मेरे साथ। इफिसियों 4 बाब उसकी आयत नंबर 24। ग्रंथियों से आगे ही आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, आयत नंबर 24। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इसके साथ ऊंची बात से पढ़े। और नई इंसानियत को पहनो। और नई इंसानियत को पहनो। नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई है। क्या है? सच्चाई है, रास्तबाजी है और पकीज़गी है। अब जो नई इंसानियत पहनना चाहते हैं वो सबसे पहले सच्चे बन जाओ, झूठ छक दो। मोबाइल से जी मैं बस 5 मिनट जाया, आना 50 मिनट बाद है। सच बोलना शुरू करो। अगर आप नई इंसानियत में आना चाहते हैं तो सबसे पहले सच्चाई को लें, अपनी जिंदगी में अपनाइए, सच्चे बन जाइए। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की ऊंची आवाज से कहिए। अच्छा, मेरा ध्यान तुहाडे सारे वाल जे गल याद रखना, उत्ते भी ते थल्ले भी, सब गौर से सुने। सबसे पहले क्या करना है? झूठ को छोड़ना है। क्या आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोलता पिया, कोई झूठ नहीं बोलता पिया। क्या आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं? सबसे पहले फिर आए सच्चे बने, रास्तबाजी को अपनाएं, रास्तबाज बने, यानी अच्छे काम करने वाले बन जाएं और पकीज़गी को बनाएं, अपनाएं पकीज़गी को। ये तीनों चीजें आ गई, आप नए मखलूक बन चुके हैं। कौन से मखलूक? नए मखलूक। नया बनना इतना आसान नहीं है कि आयत पढ़ ली और नए बन गए। अब मैं उसका आपको तरीकाकार बता रहा हूं कि नए बनना कैसे है। हालेलुया। झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या करे? सच बोले। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। ए ना होवे कि जिंदगी का सूरज ही डूब जावे ते नाराज ही रहना है। हालेलुया। आप जानते हैं ना कि वक्त का कोई पता नहीं है। क्यों विक्की भाई? साडे वक्त का भी सानू कोई पता
نہیں ہے. جدیاں پرچیاں کٹیاں گئی ہیں پچھلے سال وہ آخری دن بھی نہیں رہے. کل بھی ایک ہماری بہت خاص عزیزہ فوت ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مہر ٹاؤن میں کل میرے خیال میں 2 فوتگیاں ہوئی ہیں, کہ اس سے زیادہ ہی ہوگی, 2 ہی ہوئی ہیں تقریباً. اور بالکل کیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہاں بھی کرسمس بالکل صحیح سیلیبریٹ کیتا اپنے بچیاں دے نال, اپنے خاندان دے نال, لیکن پرچیاں کٹیاں گئیاں تے ساواں بھی کٹیاں گئیاں. آؤ آج ہمارے پاس وقت ہے, نئی مخلوق بن جاؤ. کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ نئی مخلوق بن جائے. آپ کے پاس آج وقت ہے. اگر نئی مخلوق نہ بنے, اگر اپنی شرست جبلت کو نہ بدلا, یسوع نام کو بھی پا کر ہم چینج نہ ہوئے, تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ, بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویہ. نئی مخلوق, نئے انسان میں مسیح کی عقل کام کرتی ہے. کس کی عقل؟ کس کی عقل کام کرتی ہے؟ مسیح کی عقل, مسیح کی حکمت کام کرتی ہے. نئے مخلوق کے اندر مسیح کی حکمت کام کرتی, پھر دنیا داری کی عقل حکمت کام نہیں کرتی اس کے اندر. ہاللیلویہ. جب پاسٹر اسے کہتا نا کہ یہ کام کرنا ہے, وہ مسیح کی عقل کو استعمال کر کے کہتا پاسٹر صاحب اسی تاڑے نال. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اسی جی جان تو تاڑے نال. تے کچھ کہندے نے پاسٹر صاحب اسی تاڑے تو دور. ہاللیلویہ. اسی تاڑے تو پرباش. جو نیا مخلوق ہوتا ہے اس کے اندر خدا کی حکمت کام کرتی ہے, خدا کی عقل کام کرتی ہے. اور نئے مخلوق کے اندر جب حکمت کام کرتی ہے تو حکمت اسے پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے. امثال 9 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے, حکمت کہہ رہی ہے میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے, زیادہ ہوں گے. ہاللیلویہ. حکمت جب آپ کے اندر آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر یسوع آ جاتا ہے, اور جس کے اندر یسوع آ جاتا ہے, یسوع تو ہے ہی زندہ. جس کے اندر یسوع زندہ ہے وہ بھی زندہ ہی رہے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ حکمت ہے اندر, حکمت ہے بچوں. ہاللیلویہ. حکمت ہے اندر. پھر یسوع نال نعرہ زور دی, بولو خداوند یسوع مسیح کی. اونچی آواز سے کہے خداوند یسوع مسیح کی. حکمت چلا چلا کر کہہ رہی ہے میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. ہاللیلویہ. جو مسیح میں ہوتے ہیں, مسیح ان کے لیے موت کو نابود کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. مارو تالی یسوع واسطے. ہاللیلویہ. اونچی بجاؤ تالی یسوع واسطے, زور دی بجاؤ یسوع واسطے تالی. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 25 اس کی آیت نمبر 8. ایلڈر صاحب وہ آج میں گل نہیں کیتی, بائبل چو کیتی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اونچی کا ہاللیلویہ. وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا. ہاللیلویہ. کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نئی مخلوق بنا لیا ہے, ان کے لیے وہ موت کو نابود کر دے گا. موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں رہے گا. ہاللیلویہ. سننے
सुनने में आता है जी मूसा के पास जब फरिश्ता आया तो मूसा ने कहा जा ये मैं नहीं जाना, ये सुनने में आती है बात। क्या वैसे आप ये ईमान रखते हैं कि अगर यस्सु को आप कहें यस्सु जी ये मैं नहीं जाना तो यस्सु उम्र बता देगा? हालेलुया। आप नए मखलूक बनकर देखें, आप अपने घुटनों को इस साल में यस्सु के सामने झुका कर देखें, फिर यस्सु से मांगे। यस्सु कहता है जो दुआ ईमान से की जाएगी, जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगोगे तुम्हें शक नहीं है, यस्सु कहता है तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। फिर भला जिंदगी मंगो, फिर भला औलाद मंगो, फिर भला कार मंगो, फिर भला डॉलर मंगो। हालेलुया। यस्सु सब देगा। हालेलुया। लेकिन पहले नया मखलूक बने। क्या बनना है? पहले नया मखलूक। लिखा है यसाया 25 बाब उसकी 8 आयत का अगला हिस्सा लिखा है, और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू। हालेलुया। आज कोई रुमाल फड़ान वाला साडा चंगा हम सफर साडे कोल, सब दे दिल विच कदूरत है, सब दे दिल विच बुग़्ज़ है, सब ही मतलबी ने। इस तरह ही है कि नहीं? इस तरह ही है कि नहीं? जे मैं किसी नाल चंगा करांगा ते अगों अगला भी कहेगा यार उन्हें चंगा कीता ही, चल मैं भी उहदा सान, फिर दिल विच क्रोध है, फिर दिल विच ग्रज है, मैं भी उहदा सान ला देना है। ये किस तरह की इंसानियत आपने पहन ली है? यस्सु आपको ये इंसानियत नहीं देना चाहते। यस्सु आपको नई इंसानियत जो कैसी कैसी थी, सच्चाई पर मबनी, रास्तबाजी पर मबनी और पकीज़गी पर मबनी, ये यस्सु आपको देना चाहता है। और जब आप ये अपनाएंगे, यस्सु आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। और आगे लिखा है अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा डालेगा। हालेलुया। खुदावंद यस्सु आपको रुसवा नहीं होने देगा। इसलिए कभी परेशान मत हुआ करें, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाएं कि किसी को पता ना लग जाए मैं भी मसीही हाँ, लोग किते मैनू पुछ ना लैन मैं भी। आपके यस्सु जैसा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं आपके यस्सु जैसा, तो आपके जैसा कैसे कोई हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। फखर से बताएं, सीना ठोक कर बताएं, हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं मसीही हूं। अपनी शनाख्त को कभी भी छुपाएं मत, नहीं तो आप रुसवा हो जाएंगे। आपकी रुसवाई किसकी बदौलत खत्म हो सकती है? यस्सु की बदौलत, जो मौत को नाबूद करता है। जिंदगी का पहला नाम यस्सु है, मैं दूसरा नहीं कहूंगा। जिंदगी का पहला नाम यस्सु है, जो आज के दिन सारी कायनात को मिला। और जिसने यस्सु नाम को ले लिया वो नया मखलूक है, क्योंकि हमारी मरकजी आयत है अगर कोई मसीह में है, यस्सु मसीह में है, तो वो नया मखलूक है। वो क्या है? नया मखलूक। और सुनिए आखिरी बात और बड़ी अहम बात, सुनिए गौर से, जो नया मखलूक है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। उस पर सजा का हुक्म कोई नहीं है। भाई मैं तो कलाम पूरा करके छड़ना है। उस पर सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यस्सु मसीह ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। और जब हम आजाद किए हुए हैं, शरीयत के तौर पर हमारा
इंसाफ नहीं होगा, हमारा इंसाफ यस्सु मसीह के फजल के मुताबिक होगा। किसके मुताबिक होगा? मेरे साथ रहिए जरा। हमारा इंसाफ किसके मुताबिक होगा? यस्सु मसीह के फजल के मुताबिक। यस्सु मसीह के फजल के मुताबिक हमारा इंसाफ होगा। शरीयत के मुताबिक हो गया ना कितने इंसाफ, ते जिन्ने साल हो गए ना जिंदगी दे, कितनी उम्र होगी एल्डर साहब आपकी? एल्डर इलियास साहब, कितनी उम्र होगी ताड़ी? 60 ही ला लिए। 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लवो। 60 मल्टीप्लाई बाय 300 कुर्बानियां ताड़े ते लागो सी। 300 कुर्बानियां ते हदिये नजराने वखरे। ते जदों ताड़े 3 बच्चे होए, उन्होंने मखसूस कराने वास्ते आए चर्च विच, ते मैंडे बर्रे ओ वखरे। हालेलुया। 300 कुर्बानियां वड्डियां कुर्बानियां, ते छोटियां मोटियां मिला मलू के चलो 200 क्या पा लो। 500 कुर्बानियां खुदा ने कहना लिया पहले इत्थे रख, फिर अगली गल करांगे। हालेलुया। आज देखिए हर इंसान को खुदा ने आजाद किया है। शरीयत से खुदा ने क्या कर दिया विक्की भाई? आजाद कर दिया। और हमें नया हुक्म क्या दिया? देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, और नया हुक्म हजरत साहब है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। हालेलुया। उसने मोहब्बत करके दिखाया। और मैंने आपको इतवार को बताया था कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि मोहब्बत कभी तमाशाई नहीं बनती, मोहब्बत खुद तमाशा बन जाती है। मोहब्बत खुद तमाशा बन जाती है। मोहब्बत का तरीका तर्ज ये नहीं है कि किनारे पर खड़ी होकर महबूब को डूबता हुआ देखे, बल्कि मोहब्बत खुद कूद पड़ती है और महबूब को वहां से निकाल लाती है। हालेलुया। और खुदा भी मुदाखलत करता है। मोहब्बत की खूबी थी उसकी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और यस्सु मसीह नासरी जब इस दुनिया में आए तो उसने गुनाह और मौत की शरीयत से हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जमीन की लानत को यस्सु मसीह ने खत्म कर दिया। आदम के गुनाह की वजह से जमीन क्या हो गई? उच्ची बोलो, जमीन क्या हो गई? आदम को खुदा ने कहा तेरे सबब से जमीन, हैरी भाई, आदम को खुदा ने कहा तेरे सबब से जमीन क्या हो गई? यार हैरी दी आवाज आन दो जरा। आज आया कितना सोहना लग रहा है जी। लानती हुई, लेकिन यस्सु मसीह के खून की बदौलत जमीन दोबारा से पाक हो गई, जमीन नई हो गई। क्यों नहीं यस्सु ने की? ताकि जो कोई मेरे खून के नीचे आए वो नया मखलूक बन जाए, और नया मखलूक फिर पुरानी जमीन पर ना रहे, बल्कि मेरे खून से धुली हुई नई जमीन पर रहे। हालेलुया। एक उठता है, एक आंदा है, दो उठते ने। और ताड़े रब दा वास्ता जे राम ना बह के कलाम सुन लिया करो। बच्चों को पेशाब पशूब करा के लिया करो। बच्चों के बहाने लाई जाते जे कलाम दे बारे। उठन तो बाद करया करो यार, बिठा लिया करो इन्हों। हालेलुया। एल्डर साहब बस 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 ऐ वेखो कि किस तरह कंट्रोल कर सकने। हालेलुया। मैं किदों दा वेखन दिया है, एक उठता है, एक जना वापस आता, दो जने बाहर जाते, फिर एक वापस आता, दो जने बाहर। की हो गया थानू यार? मैं इंडिया वाले जनाब कितनी कितनी देर तक कलाम करते रहते हैं, इंडिया के पास्टर, और सर 4-4 घंटे कलाम करते हैं, ते लोकी बड़े आराम नाल ते शौक नाल बह के सुनते हैं। अब पाकिस्तानियों को पता नहीं की मसला है। मैं फिर शुरू कर देना, शुरू तो
हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। कलाम वेले उठ्या ना करो यार, ताड़ी मेहरबानी। अपने आप पर कंट्रोल करें। फर्ज करो जिट्टी रोड ते आंदे हो, जिट्टी रोड ते आंदे हो, घंटा लगना घर जान च, तो फिर की करोगे? फिर भी तो कंट्रोल करना ही है ना। तो कलाम वारी भी कंट्रोल कर लिया करो। खुदावंद तुहानू सारिआं नूं बरकत दे। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। हमारे हर तरह के किरमजी गुनाहों को भी धोकर यीशु ने पाक साफ कर दिया। अब हम जहान के हम शक्ल नहीं हैं, बल्कि अब हम एक नई मखलूक है। वो मखलूक जिसको खुदावंद यीशु ने बेऐब कर दिया, बेदागदार कर दिया। अब हम पर कोई दाग नहीं है, अब हम पर कोई जुरी नहीं है, अब हम कोई ऐब वाले नहीं है, अब हमारे अंदर किसी किस्म का कोई भी नुक्स नहीं है। हम हर तरह के नुक्स से पाक हैं, और जब नुक्स से पाक हैं तो खुदा से मुलाकात के लिए भी बिल्कुल रेडी है। नई मखलूक खुदा की बादशाही में जाएगी, खुदा की बादशाही को देखेगी। हालेलुया। क्या आप सब आसमान की बादशाही के शहरी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब नई मखलूक बन चुके? आज नए साल के मौका पर इंसान को नया बनाने के लिए खुदा ने यीशु नाम बख्शा है। यीशु नाम को ले लो, यीशु नाम को पहन लो, यीशु नाम को अपने अंदर बसा लो, यीशु नाम को अपनी जिंदगियों में रख लो। आप नए बन जाओगे, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके वसीला से हम नजात पा सके। सिर्फ एक ही नाम है जिसमें हमारी नजात है, और वो नाम, ऊंची आवाज से कहे वो नाम, ऊंची आवाज से कहे वो नाम, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, वह आसमानियों का हो, वह जमीनियों का, वह उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान खुदा बाप को जलाल देने के लिए यही इकरार करती है कि यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। हालेलुया। आप नजात पाने के लिए तैयार हैं? रेडी है? खुदावंद आप सबको आज इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। आइए हम सब सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ करेंगे हम सब।